ঘোষ 24 সত্যের খোঁজে সত্যের সাথে। ঘোষ 24-এ আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি। ঘোষ 24 আপনারা জানেন যে সমস্ত ভারতবর্ষে বিভিন্ন জায়গায় শিক্ষা সংস্কারের ক্ষেত্রে একটা অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে এবং গোটা দেশ এই মুহূর্তে যে বিষয়কে নিয়ে অত্যন্ত সচল হয়ে গেছে। গোটা দিল্লি শহর 20 দিন ধরে যে পরিস্থিতি তোর মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে সেটা গোটা ভারতবর্ষের সীমানা ছাড়িয়ে আন্তর্জাতিক দুনিয়াতে ইতিমধ্যেই কিন্তু সাড়া জাগিয়ে ফেলেছে। কি ছিল সেই আন্দোলন? প্রথমে হচ্ছে সিজেআই সিজিপি পার্টি, তারা বলেছিল যে ভারতবর্ষে নিট যে পরীক্ষা, সে পরীক্ষায় তাদের দাবি ছিল যে সে পরীক্ষার ক্ষেত্রে যে কোয়েশ্চেন পেপার লিক হয়েছিল, এই কোয়েশ্চেন পেপার লিক নিয়ে গোটা দেশ উত্তাল হয়ে ওঠে এবং পরিস্থিতিকে যেভাবে সরকার ডিল করেছে শুরুর দিন থেকে তা অত্যন্ত হতাশাজনক পরিস্থিতি তৈরি করেছে, বিশেষ করে দেশের যুব সমাজের মধ্যে। আজ 24 তারিখ দেখুন কি পরিস্থিতি রয়েছে এবং গতকাল রাত্রেও পর্যন্ত এখানে যেভাবে লাঠিচার্জ হয়েছে, যেভাবে কাঁদানে গ্যাস ছড়া হয়েছে এবং 20 তারিখ গোটা দিল্লি শহরে যে পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল সেই পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে কিন্তু গোটা দেশের যে ছাত্র যুব সমাজ, সেই ছাত্র যুব সমাজকে কিন্তু দমিয়ে রাখা যায়নি। তারা চাইছে 3টে দাবিকে রেখেছে সামনে, যেখানে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের ইস্তফা এবং ইস্তফার পর আরও যে দুটি দাবি রয়েছে সেই দাবির মধ্যে যে ছাত্ররা এই কেলেঙ্কারির জেরে আত্মহত্যা করেছে সেই পরিবারকে তারা বলে তাদের দাবি যে সে পরিবারকে যাতে আর্থিক সহায়তা করা হয়। সরকার সংবেদনশীলতার সাথে এখন দেখার চেষ্টা করছে। প্রধানমন্ত্রী স্টেটমেন্ট দিয়েছেন। मित्रों, ये जो स्टूडेंट्स की डिमांड है, जिस विषय पर उन्होंने मुद्दे उठाए हैं पेपर लीक का, सबसे पहले तो मेरा आग्रह है कि हमें इसका राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए और इसमें से राजनीतिक लाभ लेना उचित नहीं है। यह एक गहन समस्या है और इस समस्या का गहनता के साथ चर्चा होने की आवश्यकता रहती है। यह समय ये नहीं है कि हमारी सरकारें, आपकी सरकारें, तुम्हारी सरकारें, इस तरीके से हम इन चीज़ों को विभाजित करें। ये एक गंभीर मसला है और जैसा मैंने आपके सामने कुछ नाम गिनाए, ये बड़ी लंबी लिस्ट है जिसमें यूपीए की सरकारें इन्वॉल्व हैं जहां पेपर लीक हुआ है। लेकिन हम आरोप प्रत्यारोप से बाहर निकल करके हमें इस पर चर्चा करनी चाहिए और चर्चा करने का जो सबसे अच्छा माध्यम है वो है सदन, वो है पार्लियामेंट, और हम चर्चा के लिए तैयार हैं। কিন্তু এখানে বহু মানুষের সাথে কথা বলার পর যে জিনিসটা এসছে যে বাদল অধিবেশন চলছে, এই বিষয় নিয়ে কিন্তু কোনো এখনো পর্যন্ত সেইভাবে কোনো কিছু উঠে আসেনি। এমতো অবস্থায় খোঁজ করতে করতে যে বিষয়টা আসছে, যে খবরগুলো সামনে দিয়ে আসছে তা কিন্তু রীতিমতো উদ্বেগ পরিস্থিতি তৈরি করেছে। আমি বলবো যে ক্যামেরা একটু যদি বাঁ দিক থেকে ডান দিক পুরো যদি ঘুরিয়ে দেখানো হয়, এই যে দেখতে পাচ্ছেন সামনে গেলে রাজীব চক, এটা জনপথ এরিয়া, এখান থেকে 7 কিলোমিটার দূরে হচ্ছে যন্তর মন্তর এবং পুরো দিল্লির ট্রাফিক ব্যবস্থা থেকে শুরু করে সমস্ত কিছু একদম কারণে প্রত্যেক দিনই এরকম হচ্ছে। পাশের সামনে কানট প্লেস, এই অফিস ছুটি হয়ে যাওয়ার পর যারা অফিসে চাকরি করে কর্মচারী থেকে শুরু করে বিভিন্ন অফিসার রয়েছেন, তারা অত্যন্ত একটা কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে গিয়ে পড়ছেন। মেট্রো স্টেশন অধিকাংশ দিন বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে প্রায়শই যখন তখন, বিশেষ করে 5টা সাড়ে 5টা 20 তারিখ 5টা সাড়ে 5টার সময় যখন এখানে কাঁদানে গ্যাস এবং প্রবল লাঠিচার্জ হচ্ছে, অফিস যাত্রীরা রীতিমতো সংকটের মধ্যে গিয়ে পড়ে গেছে। একদিকে তাদের বাড়ির ছেলেমেয়েরা আজকে এই অকুস্থলে চলে এসছে এবং বিভিন্নভাবে তারা তাদের দাবি দাওয়াগুলোকে তুলে ধরছেন এবং তারা অনড়। কোনোভাবেই শিক্ষা সংস্কার যতক্ষণ না হবে তাদের মধ্যে কিন্তু সেই জোশ তৈরি হয়ে গেছে, তারা পিছু হটবে না। বহু ছাত্রের সাথে এই কয়েকদিনে কথা বলেছি এবং তাদের খোঁজ নিয়েছি। তাদের খোঁজ করতে করতে যে তাদের কাছ থেকে যে খবরগুলো উঠে আসছে সেটা কিন্তু রীতিমতো প্রত্যেককে কিন্তু হৃদয়ের ভেতর থেকে নড়িয়ে দেওয়ার মতো।
स्टार्टिंग होगी उधर से ही होगी, पहले भी उधर से ही हुई थी। और ग्राउंड लेवल से आप कर रहे हो, आप चाहे आप कुछ भी अपलोड करो, वो आपकी मर्जी है। आपका जो भी मीडिया है, ये तो दिखाओ, ये चीज़ तो दिखाओ आप कि हम ये कर रहे हैं। 2 बजे से खड़े हैं यहाँ, 2 बजे से खड़े यहाँ बैठ। हम अपनी पब्लिक को भी कह रहे हैं कि यहाँ बैठो, क्योंकि हमें भी तो दिखाना है कि हमारी कितनी भीड़ है। अभी कुछ इशू आ रहे हैं, छोटे मोटे इशू आ रहे हैं, छोटी मोटी बातों पर लड़ाई हो जाती है। यहाँ पे भीड़ में होता है, बहुत सारे बर्तन होते तो आवाज़ आती है, कोई दिक्कत नहीं है। बट तब भी उनको ऐसा लगे पुलिस वालों को कि वहाँ पे हमारे खिलाफ नहीं, हमारे संग हैं लोग। वहाँ पे 2 लोग आ जाते हैं, 2 लोग चले जाते हैं, क्या हो रहा है? हमारे तो सब सपोर्ट में है ना, खाना जा रहा है, पानी जा रहा है, सब कुछ ठीक है। अब वही बात उसकी, हमारे मुद्दों की, हमारे मुद्दे कौन रखेगा? अभी वहाँ सब खड़े हैं ना, तो किसी ने ये बताया क्या बात है। ये जो हम किसके लिए खड़े हैं? लीक पेपर के लिए। सबसे बेसिक नीड है, सबसे बेसिक नीड। ये खुद सोचना चाहिए हम क्यों खड़े कर रहे हैं, क्यों बने हैं फिर ये एजुकेशन मिनिस्टर क्यों बना है? खुद सोचना चाहिए ना। ये तो बेसिक नीड है बच्चों की। बेसिक नीड नहीं हो, आप मान लो आपका बच्चा है या फिर किसी का ही बच्चा है, आप 5 साल पढ़ाई करके अगर उसका पेपर लीक हो जाए, ये कब बंद होगा? जब उनके जो बड़े बड़े मिनिस्टर हैं उनके बच्चे पढ़ेंगे, वो रोएंगे, वो सुधार करेंगे, तब बंद होगा। ये सब बंद नहीं होगा। और अगर वायलेंस की बात है, वायलेंस हम तो नहीं कर रहे, और ये सब तभी वायलेंस की बात है, हम करने पे आगे ना तो मंत्री मर सकता है, कुछ भी हो सकता है। वायलेंस तो बहुत होगा, बहुत पब्लिक है, करोड़ों की पब्लिक, लाखों की पब्लिक है, 20-30 है ये लोग, कुछ नहीं कर पाएंगे। गुंजन सोनी। गुंजन। अच्छा, क्या बोलना चाहते हो? हाँ जी, मैं बोलना चाहती हूँ, यहाँ पे अभी हम लोग प्रोटेस्ट के लिए, आज हमारा पहला दिन है, हम पहली बार आए, क्योंकि हमें इतने टाइम से परमिशन नहीं दी जा रही थी, पर इतना कौन नहीं परमिशन दे रहा? घर वालों के द्वारा, क्योंकि यहाँ पे लाठीचार्ज बहुत बेरहमी से लोगों को ऐसे पीटा जा रहा था जैसे कि हम ही आतंकवादी हैं। वही किसी ने सही बात कही है। हम देखा है कोई भी 20 ईयर का बहुत बेरहमी से लाठीचार्ज हुआ था, टीयर गैस की सेल फटी। इसके बाद घर वालों को नहीं बोल के आया है, परमिशन लेके? हाँ जी, अब इतना वो लोग देख रहे हैं। अंकल यहाँ पे मैं अपने घर वालों को, मेरे पापा सपोर्टर हैं और मेरे जो दादू हैं वो आरएसएस के हैं, ठीक है। तो उनके सोच ऐसी है कि मोदी जी ने उनके सामने बिल्कुल अपनी सिचुएशन ऐसी बना दी है कि वो बिल्कुल राजा है। मैं उनके सामने, मैंने पापा के सामने बोला कि पापा बहुत लोगों की सुसाइड हो रही है, बच्चों की तरफ से हो रही है। मेरा भाई नीट का एग्जाम वो देगा, तैयारी करे, 11th में है वो। तो मेरे पापा कह रहे कि नहीं, मोदी जी राजा, उनके खिलाफ हम नहीं बोल सकते। मतलब राजा कैसे कोई बोल सकता है? राजा में दादू का मतलब कुछ भी मैं बोल रही हूँ कि न्यूज़ के हिसाब से वो लोग बोल रहे हैं कि अरे ये लोग तो टेररिस्ट है, सोनम वांगचुक जो है वो बिल्कुल चाइना का है, ये लोग डोनाल्ड ट्रम्प है, ये वो ऐसे, मतलब कोई सच सुनना ही नहीं चाहता है यहाँ पे। और जो बिल्कुल जो आरएसएस के भी लोग हैं वो बिल्कुल ये दिखाते कह रहे हैं हम बिल्कुल हिंदू हैं, जो भी आएगा उसको काट पाट देंगे। आप लोग इंसान तो भूल ही गए हो। इंसानियत भी तो देखो कि लोग जब पिट रहे हैं यहाँ पे, जो लड़कियाँ हैं, ये माताएं, इनकी भी तो कोई सुनो कि इनको भी तो आगे जाके कुछ करना है ना। अगर आपको इतनी ही चिंता है देश की, इतने ही आप हिंदू बनते हो, तो पहले बच्चों की तो सुनो। बच्चों की तो कोई सुनता है नहीं, डिजाइन भी नहीं दिया है। ये लोग बस छोटी छोटी बातें बना रहे हैं कि हाँ हम लोग ये थोड़ा ये कर लेंगे, थोड़ा वो कर लेंगे, लेकिन जो मेन चीज़ है, उस पर कोई नहीं बोला जा रहा है। इनको भी ये भी पता है कि अगर रिजाइन दे देंगे तो धीरे धीरे करके सारे नेताओं की भी धीरे धीरे पोल खुल जाएगी, जो भी बना रहे हैं इनके, इसलिए वो रिजाइन नहीं। ये भी चीज़ भी बहुत ऐसा कोई तो बड़ा ऐसा रीज़न होगा ना, तभी मोदी जी रिजाइन नहीं दे रहे हैं ना, उनको किसी को करने दे रहे हैं। इनके पीछे भी बहुत सारी चीज़ें होंगी जो हमें पता नहीं लगी गई है, वो दिखाना भी नहीं चाहते उस चीज़ को, लेकिन इनको पता नहीं है कि हम लोगों को धीरे धीरे पता चल रहा है कि क्यों नहीं रिजाइन देना चाह रहे। ऐसा क्या है उसमें जो रिजाइन क्यों नहीं देना चाह रहा है वो? मतलब ऐसे बहुत सी चीज़ें आगे पहले के टाइम पे भी ऐसे प्रोटेस्ट होता था और लोग उनके सुनते थे। तो इसी प्रोटेस्ट में ऐसा क्यों बोला जा रहा है कि यहाँ पे बच्चे बात उठा, बच्चे तो बात उठाएंगे ना, यहाँ पे बच्चों के लिए हो रहा है, एजुकेशन के बारे में हो रहा है, आगे चीज़ों में और चीज़ों में प्रोटेस्ट भी और चीज़ों में हो जाएगा। आप अपना बैच दो तो कोई यहाँ पे प्रोटेस्ट नहीं होगा। अगर आप अपना बैच नहीं देते तो यहाँ पे कोई
प्रोटेस्ट वाला नहीं होता। ঠিক পাচ্ছেন যে বিভিন্নভাবে হচ্ছে একদিকে যেমন একটা উৎসাহ মেজাজ একদিকে রয়েছে, কিন্তু আরেকদিকে নিরাশে যে সরকার এখনো মানার জন্য প্রস্তুত নয়। এবং এই রকম একটা জায়গা থেকে ঠিক বিকেলবেলা আমরা যখন এটা তুলছি, অন্যদিকে হচ্ছে দিল্লির মানুষ কিন্তু ক্রমশ উদ্বিগ্ন হচ্ছে এবং গোটা ভারতবর্ষে এটা ছড়াচ্ছে। এবং কেন এখনো পর্যন্ত ধর্মেন্দ্র প্রধান ইস্তফা দিচ্ছেন না বা এদের সাথে এসে একটা আলাপ আলোচনায় বসছেন না, এই প্রশ্নটাই ঘুরছে। এবং রীতিমতো কিন্তু এটা একটা ভাইরাসের মতো যেন সঞ্চারিত হচ্ছে বিভিন্ন জায়গা থেকে, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। আজকে এই পর্যন্তই থাকছি। দেশের জাগ্রত বিবেক, জাগ্রত ছাত্র সমাজ, তাদের ছবি আপনাদের কাছে দেখালাম। এরপরে অন্য কোনো পর্বে অন্য কোথাও নিশ্চয়ই আপনাদের সাথে দেখা হবে। আপনারা অবশ্যই খোঁজ ক্লিক করবেন, সাবস্ক্রাইব করবেন এবং অবশ্যই টাইম লাইনে গিয়ে আপনাদের সুস্পষ্ট মতামত দেবেন যে ভারতবর্ষের শিক্ষা ব্যবস্থা ঠিক কীরকম হওয়া উচিত। খোঁজ 24, সত্যের খোঁজে সত্যের সাথে।